Hello dear students, today in this video we are going to understand the concept of mean. Mean जिसे हम x बार से present करते हैं. It is also known as average or arithmetic mean. Simply it is the average value of a series. तीन series होती हैं, individual series, discrete series and continuous series. और हर series में mean को solve करने के लिए एक अलग formula use होता है. वैसे ही to calculate mean we need to use different methods like direct method, shortcut method and step deviation method. Let us understand the first example. Monthly income of 5 persons is given 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 and 25,000. Find out mean. So mean equals to sigma x upon n. Sigma x मतलब sum total of income. जो भी दिया गया है, इनकम दी गई है, सम टोटल ऑफ इनकम, मार्क्स दिए गए हैं, सम टोटल ऑफ मार्क्स, वेजेस दी गई है, सम टोटल ऑफ वेजेस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स. कितने पर्सन्स है बेटा? 5. सो हम पहले मीन को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से. एक्स बार इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ इनकम मीन्स 5,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स 5. So the sum total of income is 75,000 and divided by the number of persons is 5. So when we divide 75,000 by 5 we get 15,000 and this is the average income, that is x bar यानी mean is equals to 15,000. ये तो हमने सॉल्व किया है डायरेक्ट मेथड से. अब अगर हम इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं तो भी आंसर सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. तो आइए एक बार इसी क्वेश्चन को समझते हैं शॉर्टकट मेथड से. अकॉर्डिंग टू शॉर्टकट मेथड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन विल बी एक्स बार इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस सम टोटल ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स. शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में है एक्स बार इक्वल्स टू ए, यहाँ है एज्यूम्ड मीन, प्लस सिग्मा डी मतलब सम टोटल ऑफ डेविएशन जो हम ले रहे हैं एज्यूम्ड मीन से, डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ पर्सन्स. सो आइए समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन एक्स, दैट इज द सीरीज वी आर गिवन हियर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू हैव assumed mean. From x you can take any value as assumed mean. So we are taking 10,000 as assumed mean. Now how to find out deviation? Here we are calculating deviation from assumed mean and the formula x minus assumed mean means आपको इस पूरी x में से एज्यूम्ड मीन यानी कि 10,000 को माइनस करना है. तो पूरी सीरीज क्या है? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 एज इट इज लिखा एंड देन वी डिडक्ट 10,000 दैट इज एज्यूम्ड मीन फ्रॉम एक्स. नाउ हमने सब में से 10,000 को यानी कि एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दिया है. तो 5,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू माइनस 5,000, 10,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 0, 15,000 minus 10,000 is equals to 5,000, 20,000 minus 10,000 is equals to 10,000 and 25,000 minus 10,000 is equals to 15,000. नाउ हम देखते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू माइनस में है और बाकी तीन वैल्यू प्लस में है. सो द सम टोटल ऑफ प्लस वैल्यू इज 30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू 25,000. यानी कि जो डेविएशन आ रहा है फ्रॉम एज्यूम्ड मीन इसका टोटल कितना आ रहा है? 25,000 and this is known as sum total of deviation from assumed mean, sigma d. Now according to the formula we first need a, that is a 10,000 that we have assumed as mean, sigma d sum total of deviation from assumed mean that is 25,000 divided by n means number of persons, these are 5. So a 10,000 plus sum total of deviation 25,000 divided by number of persons 5. So 10,000 plus 25,000 divided by 5. अब 25,000 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5,000. 10,000
प्लस 5000 कितना आ जाएगा बेटा 15,000। ऑलरेडी जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था डायरेक्ट मेथड से जो सॉल्व किया था उसका भी कितना आता था 15,000 आता था। आई टोल्ड यू दैट you solve mean from any method, you calculate mean from any method, the answer will remain same. So the mean will be 15,000, means the average income will be 15,000. So let us understand the same example by using step deviation method. In step deviation method, to calculate mean, this formula will be applied. The formula is x bar equals to assumed mean plus sum total of step deviation, that is d dash divided by number of persons into I. अब कैसे इन वैल्यूज को हमने निकाला है ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम्ड मीन, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में समझ लिया है कि x में से किसी भी वैल्यू को आप एज अ मीन एज्यूम्ड कर सकते हैं। एनी वैल्यू, हमने 10,000 लिया है, 15,000 ले सकते हैं, 20,000 ले सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू को आप एज्यूम्ड कर सकते हैं एज अ मीन। दैट इज डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, और एज्यूम्ड हमने कितना किया है 10,000। तो आपको क्या करना है, इसे निकालने के लिए पूरी एक्स में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है, जो हम पहले क्वेश्चन में समझ चुके हैं। टोटल विल बी 25,000। नाउ that is d dash, that is step deviation, and to calculate step deviation the formula आपको d को डिवाइड करना है i से, यानी कि डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन को डिवाइड करना है i से। ना व्हाट इज i? i is the smallest value, positive value of डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, यानी कि इसकी सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू को i लेना है। दैट इज सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या है 5,000, इसको हमने क्या मान लिया है बेटा i। अब आपको क्या करना है, यू आर टू डिवाइड डेविएशन बाय i, यानी कि इस पूरी d को आपको i यानी कि 5,000 से डिवाइड करना है। तो -5,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 0 बाय 5,000, 5,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000, यानी कि पूरी की पूरी d को हमने यहाँ लिख लिया है और पूरी d को हमने 5,000 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो अगर -5,000 को 5,000 से डिवाइड करेंगे कितना आता है -1, 0 बाय 5,000, 0, 5,000 बाय 5,000 दैट इज +1, 10,000 by 5,000 that is 2, and 15,000 by 5,000 that is 3। तो हम देखते हैं कि प्लस में आ जाता है 6 और माइनस में आ जाता है 1, तो 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5। सिग्मा डी डैश यानी कि सम टोटल ऑफ स्टेप डेविएशन कितना आ जाता है 5 आ जाता है। सो द फॉर्मूला इज मीन इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन 10,000 प्लस सम टोटल ऑफ स्टेप डेविएशन डी डैश 5 divided by number of persons 5 into I, that is the smallest value from D, that is 5,000। कैलकुलेशन करते हैं, 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 1, 1 को 5,000 में इंटू करेंगे 5,000 रहेगा, तो 10,000 प्लस 5,000 कितना आ जाता है 15,000। अगेन द सेम आंसर वी आर गेटिंग हियर, दैट इज 15,000। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एन एग्जाम्पल ऑफ मिसिंग वैल्यू। Here you can see the numerical is given. Marks obtained by a student in 5 subjects are 8 in English, 12 in Economics, 18 in Hindi, 9 in BST, and X in Physical Education. If average marks, mean marks of the student is in 5 subjects are 15, calculate his marks in Physical Education. तो हमें क्या करना है, हमें फिजिकल एजुकेशन में कितने उसके मार्क्स हैं वो देखने हैं। तो फार्मूला एज वी ऑलरेडी नो द फार्मूला, मीन इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, एंड द मीन मार्क्स कितने दिए गए हैं, मीन मार्क्स दिए गए हैं 15। इन दिस लाइन एट द लास्ट यू कैन सी 15 जो है उसके एवरेज मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट्स के, एंड इंग्लिश में 8, इकोनॉमिक्स में 12, हिंदी में 18, BST में 9, एंड फिजिकल एजुकेशन में x दिए गए हैं, divided by the number of subjects 5. So let's total it, 8 plus 12 plus 18 plus 9 plus x, that is 47 plus x divided by number of subjects 5. अब होगा क्या, now look at the point, this 15 and this 5 हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, क्योंकि जब हम यहाँ 1 लेंगे तो 15 into 5 and 47 plus x into 1,
तो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75 एंड 47 प्लस एक्स इंटू 1 कितना रहेगा एज इट इज रहेगा, तो 75 इक्वल्स टू 47 प्लस एक्स हमारे पास आ जाता है। और नाउ टेक दिस 47 दिस साइड, this is here positive and here it will be negative. So x equals to 75 minus 47 is equals to 28. तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 28 आ जाती है। दैट मीन टू से इसके जो मार्क्स हैं 28 हैं इन फिजिकल एजुकेशन। सो दिस इज द वे दैट यू कैन कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मीन इन discrete series. Let's understand how to find out mean in discrete series. The question is given, find out mean from the given data, wages 10, 20, 30, 40 and 50 and number of workers 4, 5, 3, 2, 5. Now how to solve? First of all, we will calculate mean by using direct method. And the formula of direct method is x bar equals to sigma fx upon sigma f. Now how to find out these values? First of all, we are given wages. wages को हम x consider करते हैं, that is x 10, 20, 30, 40 and 50 and number of workers जिसे हम मानते हैं frequency. Frequency is given 4, 5, 3, 2, 5. ना हमने इसको फ्रीक्वेंसी क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बताती है कि कितनी वेजेस कितने लोगों को मिल रही है, नंबर ऑफ पर्सन्स को बता रही है। ना सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल करना है, मल्टीपल ऑफ एफ एंड एक्स, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स और वेजेस इनको इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है इनकी। तो हमारा बन जाता है एफ एक्स। कैसे? 10 इंटू 4 दैट इज 40, 20 into 5 that is 100, 30 into 3 that is 90, 40 into 2 that is 80 and 50 into 5 that is 250. Now this is fx multiple of f and x and sigma fx means sum total of multiple of fx is 560. Now according to the formula to find out mean we need sigma fx that is 560 and sigma f that is 19. Then जब हम 560 को 19 से डिवाइड करेंगे then we will get 29.47 and this is the value of mean. So in this question the mean will be 29.47. So let us understand mean from discrete series by using shortcut method. Now dear students, let us understand the same example using shortcut method. In shortcut method the formula is, and please do keep in mind that when we solve mean we need to use formula according to the method. As in shortcut method the formula will be x bar equals to a means assumed mean plus sigma fd means sum total of multiple of frequency and deviation divided by sigma f means sum total of frequency. So let us understand how to get these values. First of all we are given x and we are given frequency. Sum total of frequency is 19. Now we are to find out deviation, that means d. और डेविएशन कैसे फाइंड करना है मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें x में से किसी भी एक वैल्यू को मीन एज्यूम कर लेना है, जिसे हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन। आप x में से किसी भी वैल्यू को मीन एज्यूम कर सकते हैं, जैसे यहाँ हमने 20 को एज्यूम कर लिया है। सो डेविएशन निकालने के लिए हम इस 20 को पूरी x में से माइनस करेंगे। तो 10 माइनस 20 माइनस 10, 20 माइनस 20 0, 30 minus 20 10, 40 minus 20 20 and 50 minus 20 that is 30. Now what we are to do, हम मल्टीप्लाई करेंगे FD की, that is FD. 4 into minus 10 minus 40, 5 into 0 0, 3 into 10 30, 2 into 20 40, 5 into 30 that is 150. Now the total of this value is 220 minus 40 is equals to 180. सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। नाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल वी नीड ए एज्यूम्ड मीन दैट इज 20 प्लस
sum total of multiple of frequency and deviation, that is 180, and sum total of frequency, that is 19. So when we divide 180 by 19, we get 9.47. Then 20 plus 9.47, that is 29.47. So the mean of this question will be 29.47. And as I've already told you कि जब किसी एक न्यूमेरिकल को किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आंसर सेम आता है. So let us understand the same numerical using step deviation method. Now dear students, let us understand the same numerical using step deviation method. And to calculate mean using step deviation method, we need to use this formula. Mean equals to A plus sigma f d dash divided by sigma f into I. Now how to find these values? Let's start. X is given, frequency is given. We have assumed mean equal to 20. That is assumed mean. Now we have already calculated deviation from assumed mean यानी कि 20, and you know how to do it. Now we need to find out deviation, that is step deviation, d dash. And to find out a step deviation, we are to divide d by I. So this is d and this is I. Now I have already told you it is the smallest value of d and that is positive. और d की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू को भी आई कहते हैं. साथ साथ में x में जो चेंज आ रहा है, जिस रेट से चेंज आ रहा है, उसको भी i कहा जाता है. जैसे 20 माइनस 10 दैट इज 10, यानी कि यहाँ पर भी 10 का गैप आ रहा है, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, i करते हैं. नाउ d डैश निकालने के लिए हमने क्या किया, i से पूरे d को डिवाइड कर दिया. दैट इज -10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू -1, 0 बाई 10 इक्वल्स टू 0, 10 बाई 10 इक्वल्स टू 1, 20 बाई 10 इक्वल्स टू 2 एंड 30 बाई 10 इक्वल्स टू 3. और ये हम पहले भी समझ चुके हैं इंडिविजुअल सीरीज में. नाउ व्हाट वी आर टू डू, वी आर टू मल्टीप्लाई f एंड d डैश. दैट इज यहाँ एरर हो जाता है, बच्चे एरर कर देते हैं, इन दोनों की इंटू कर देते हैं. प्लीज़ ध्यान दीजिए, आपको फ्रीक्वेंसी और d डैश की इंटू करनी है. 4 इंटू -1 -4, 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4 एंड 5 इंटू 3 दैट इज 15. एंड द सम टोटल ऑफ दिस इज 22 एंड दैट इज -4. तो 22 - 4 इज इक्वल्स टू 18. नाउ वी नीड a assumed mean 20 plus sum total of multiple of frequency and step deviation, that is 18, sum total of frequency, that is 19, into I that we have taken, that is 10. Now let's start. अब याद रखना यहाँ I भी लिखा जाता है, बुक्स में C भी होता है, तो आप I की जगह C भी यूज़ कर सकते हैं. Now 20 है assumed mean plus 18 by 19 into 100. Now जब हम 19 से 18 को डिवाइड करेंगे, वी गेट 0.947 इंटू 10, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 9.47. सो 20 प्लस 9.47 इज इक्वल्स टू 29.47 एंड द मीन विल बी 29.47. आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रीट सीरीज से मीन निकालने के तीनों मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड अच्छे से क्लियर हो गए हो. तो आइए समझते हैं डिस्क्रीट सीरीज में मिसिंग वैल्यू के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑफ मिसिंग वैल्यू. फाइंड आउट मिसिंग वैल्यू व्हेन मीन इक्वल्स टू 25. जब भी मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन दिया जाएगा तो मीन आपको दिया जाएगा, एवरेज वैल्यू आपको दी जाएगी. x दिया गया है 15, 20, 25, 30 एंड 35, और फ्रीक्वेंसी दी गई है 1 2 4 x एंड 1, यानी कि दिस वन इज मिसिंग. ये वैल्यू हमारे पास नहीं है. क्या करना है, हमें x दिया गया है और f यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है. सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है fx को. हम पाएंगे मल्टीपल ऑफ fx. 1 इंटू 15 दैट इज 15, 20 इंटू 2 दैट इज 40, 25 इंटू 4 दैट इज 100, 30x दैट इज 30x, 35 इंटू 1 दैट इज 35. नाउ हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे एंड fx का टोटल करेंगे. सो द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 8 प्लस x एंड सम टोटल ऑफ fx मल्टीपल ऑफ f एंड x इज 190 प्लस 30x. प्लीज कीप वन थिंग इन माइंड कि आपको x को ऐड
प्लस करके ही लिखना है। जैसे 30x हमने कैसे लिखा है, प्लस 30x लिखा है, उसको ऐड नहीं किया, उसको अलग रखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अकॉर्डिंगली 25 हमारा क्या है, मीन दिया गया है, 25 मीन दिया गया है, इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स, यानी कि सम टोटल ऑफ एफ एक्स कितना दिया गया है 190 प्लस 30 दैट इज, एंड सिग्मा एफ कितना दिया गया है 8 प्लस एक्स। नाउ जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो 25 यहाँ इंटू हो जाएगा, तो 25 इंटू 8 200 एंड 25 इंटू एक्स दैट इज 25x, तो ये बन गया। और 1 यहाँ ले जाएंगे तो 190 प्लस 30x एज इट इज रहेगा, तो यहाँ बन जाता है 200 प्लस 25x इक्वल्स टू 190 प्लस 30x। नाउ 200 190 को यहाँ ले आते हैं और 25x को वहाँ ले जाते हैं, तो बनता है 30x माइनस 25x इक्वल्स टू 200 माइनस 190। 30x माइनस 25x कितना आता है बेटा 5x, एंड 200 माइनस 190 कितना आता है 10। तो अब ये 5 यहाँ इंटू में है, इसे हम कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, तो x बराबर 10 अपॉन 5 इक्वल्स टू 2। तो जो मिसिंग वैल्यू है कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मीन, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको मिसिंग वैल्यू के न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।